is the scheme that we are going to discuss today, Sukanya Samriddhi Yojana. This scheme, guys, was launched as a part of Beti Bachao, Beti Padhao. You can see the logo here of Beti Bachao, Beti Padhao. So we have a Beti Bachao, Beti Padhao scheme that was launched. Beti Bachao, Beti Padhao. Okay, that was launched in 2015. So as a part of Beti Bachao, Beti Padhao campaign, this Sukanya Samriddhi Yojana was launched by the government of India. Okay, so let us try to simplify the objective of the scheme, and these are, first of all, these are the things that you can do effortlessly, जिसको आपको दोबारा से कभी पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आपने ये सेशन अच्छे से देखा. So there are two words, Sukanya and Samriddhi. Sukanya means what? Girl child, right? Sukanya का मतलब क्या है यहाँ पे? Girl child. And Samriddhi का मतलब क्या है? Prosperity. Prosperity. अब देखो, इसका मतलब यह है कि हमें जो भी हमारी गर्ल चाइल्ड है उनकी लाइफ को प्रॉस्पर बनाना है, उनको प्रोस्पेरिटी प्रोवाइड करनी है उनको लाइफ में. ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट द इंडियन सोसाइटी, अगर हम इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो गर्ल चाइल्ड को जो प्रोस्पेरिटी है वो दो तरीकों से प्रोवाइड कराई जा सकती है. पहला उसका एजुकेशन और दूसरा उसकी मैरिज. ओके, ये दो तरीके हैं. अगर ये दो चीजें किसी गर्ल चाइल्ड की फुलफिल हो जाती है, then according to the Indian context, Indian society, जो वो गर्ल चाइल्ड है उसकी लाइफ जो है वो प्रॉस्पर हो जाएगी, उसको लाइफ में प्रॉस्पेरिटी मिल जाएगी, उसकी लाइफ समृद्ध हो जाएगी. राइट. अब इन दोनों ही चीजों के लिए, एजुकेशन और मैरिज, इन दोनों के लिए ही जो चीजें रिक्वायर्ड है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पैसा. The most important thing for these two things, education and marriage, is the money. Okay, so this scheme is somewhat related to money. ये बात तो क्लियर हो गई. Now, अब इसमें प्रोस्पेरिटी और समृद्धि किस तरीके से प्रोवाइड कराई जाएगी? लेट मी एक्सप्लेन यू दिस. सो इसमें गवर्नमेंट विल नॉट प्रोवाइड एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस. रिमेंबर दिस थिंग. पैसे की बात आई, बट गवर्नमेंट हियर इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस. रादर गवर्नमेंट ने ये बोला कि ओपन अकाउंट, एक अकाउंट खोलो. ओके, उसमें पैसे डिपॉजिट करो इन द नेम ऑफ द गर्ल चाइल्ड, एंड एन अकाउंट शुड बी ओपन इन द नेम ऑफ द गर्ल चाइल्ड. ओके, एंड द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग a handsome rate of interest on the deposits made on this account. Okay, जो भी अकाउंट में हम पैसा डालेंगे in the name of the girl child, उस पे जो गवर्नमेंट है will provide the handsome rate of interest. काफी अच्छा खासा rate of interest प्रोवाइड कराया जाता है on the सुकन्या समृद्धि योजना account. Okay, so that is how government is providing support under this scheme. So let me repeat this. सुकन्या means girl child and समृद्धि means what? Prosperity. and किसी भी गर्ल चाइल्ड की लाइफ को अगर की लाइफ में prosperity प्रोवाइड करानी है, उसकी लाइफ को समृद्ध करना है, देन दो ही कॉन्टेक्स्ट है हमारे इंडियन सोसाइटीज में, एजुकेशन एंड मैरिज. और दोनों के लिए क्या चाहिए? पैसा. बट हियर गवर्नमेंट इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस. रादर गवर्नमेंट इज सेइंग that you just open an account in the name of the girl child and we'll be providing a handsome rate of interest on the deposits made on this account. Okay, so I hope guys the objective is clear. So basically this is a Sukanya Samriddhi account. Okay, इसमें एक account open किया जाता है. And of course the ministry is what? Ministry of Women and Child Development, which is headed by Smriti Irani, her Lok Sabha constituency Amethi, and she is also the Minister of Textile. Okay, and recently if you remember textile का नाम आया है, तो इंडिया का जो पहला कॉटन का जो ब्रांड है that is known as कस्तूरी. And launch here, it was launched in 2015 because it was launched as a part of Beti Bachao Beti Padhao, which was launched in 2015. So it is also launched in 2015. So it is very easy to remember. अगर आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पता है और आपको ये पता है that it is a part of बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, then it should be launched in the year 2015. Okay. And now the eligibility. So eligibility guys is very easy to remember. इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको इतनी एक लाइन याद रखनी है that the girl child must be below the age of 10 years. जो गर्ल चाइल्ड है वो 10 साल से छोटा होना चाहिए. इसके अलावा तो बहुत सिंपल है, ये दोनों प्रोविजंस याद रखने that one account is allowed per child. Of course आप एक चाइल्ड के नाम पे दो अकाउंट कैसे खुलवा दोगे for the same scheme? किसी भी स्कीम में याद रखना, एक तरीके की स्कीम का फायदा एक पर्सन नहीं ले सकता. Alright, so एक चाइल्ड के ऊपर एक ही अकाउंट खुलेगा. एंड दूसरा जो प्रोविजन है, फैमिली कैन ओपन 2 SSY अकाउंट्स. अब इसको कैसे याद रखा जाए 2 SSY अकाउंट्स? बिकॉज़ द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग हम दो हमारे दो. ओके, इफ यू रिमेंबर गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग व्हाट? हम दो हमारे दो. तो इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम 2 चाइल्ड ही हैं जो गवर्नमेंट प्रमोट करती है. सो ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है 2 चाइल्ड्स को, 2 चिल्ड्रन को, सो गवर्नमेंट विल ओनली प्रोवाइड बेनिफिट टू द 2 चिल्ड्रन. ओके, अगर 2 से ज्यादा होंगे देन गवर्नमेंट विल नॉट प्रोवाइड the benefit to the third child. Right, so
A family can open maximum 2 SSY account, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट. So I hope the eligibility is clear. तो गर्ल चाइल्ड है उसकी एज 10 साल से कम होनी चाहिए. Other than this, एक फैमिली 2 सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट से ज्यादा नहीं खोल सकते. And also one account is allowed per child. Now if we talk about the validity of account. अब गाइस देखो वैलिडिटी ऑफ अकाउंट को मैंने कैसे याद रखा है मैं आपको एक बात बता देता हूँ. देखो हमारे देश में जो मिनिमम एज ऑफ मैरिज है फॉर बॉयज इट इज 21, फॉर गर्ल्स इट इज 18. ओके, तो हम यहाँ पे उल्टा याद कर लो. ओके, उल्टा याद कर लो कि जो लड़कों की शादी की उम्र होती है 21 साल, उतना ही इसका टेन्योर है 21 साल. क्योंकि इसको ऐसा समझ के चलो कि जो लड़के हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 21 साल में एलिजिबल हो जाते हैं शादी के लिए, और लड़के कब हो जाती है 18 साल में. तो यहाँ पे भी हम मैच्योरिटी को कैसे याद रखेंगे, 21 साल जो कि लड़कों का होता है. ओके, सो मेरा ये तरीका है याद रखने का. रेस्ट इज अप टू यू. वैलिडिटी ऑफ अकाउंट कितनी है इसकी 21 साल की, लेकिन इसमें 21 साल तक डिपॉजिट नहीं होगा. डिपॉजिट कैन बी मेड अप टू 14 इयर्स. 14 साल तक डिपॉजिट करना है इस अकाउंट में, राइट. एंड रिमेंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये अकाउंट जो है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा अगर गर्ल चाइल्ड की शादी हो जाती है बिफोर कंप्लीशन ऑफ दिस 21 ईयर. अगर 21 साल हो जाने से पहले, लेट अस से कि अगर कोई गर्ल चाइल्ड 9 साल की है, ठीक है, और 21 साल अगर जोड़ दे तो जब तक कि वो 30 की नहीं हो जाती तब तक का इसका टेन्योर रहेगा. बट एट द एज ऑफ लेट अस से 24 उसकी शादी हो गई तो 6 साल पहले ही ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा और जो भी पैसा है वो गर्ल चाइल्ड को वापस मिल जाएगा. ओके, and now let's talk about the things that you have to remember. So deposits की बात करें तो मिनिमम डिपॉजिट कितना है per annum ₹250 and maximum डिपॉजिट है ₹1,50,000 per annum. Earlier this 250 was ₹1,000. Earlier the minimum deposit was ₹1,000 but it was reduced to 250. Okay, and premature withdrawal भी allowed है only after the girl child attain the age of 18 years. ओके, जब वो गर्ल चाइल्ड 18 साल की हो जाएगी उसी के बाद प्रीमेच्योर विड्रॉल किया जा सकता है. दैट इज आल्सो लिमिटेड अप टू हाउ मच 50%. 50% से ज्यादा प्रीमेच्योर विड्रॉल नहीं किया जा सकता. और ये जो प्रीमेच्योर विड्रॉल होगा दैट इज टू बी डन बाय द गर्ल चाइल्ड ओनली आफ्टर द अटेनिंग 18 इयर्स ऑफ एज. ओके, एंड इफ द गर्ल चाइल्ड डाइज, अगर उस गर्ल चाइल्ड की डेथ हो जाती है तो क्या प्रोविजन है, देन द अकाउंट विल बी क्लोज्ड इमीडिएटली और जो भी बैलेंस होगा अकाउंट में विद इंटरेस्ट वो उसके गार्जियन को प्रोवाइड कर दिया जाएगा. ओके, द अकाउंट विल बी क्लोज्ड इमीडिएटली एंड द बैलेंस इन द अकाउंट along with the interest will be provided to the guardian of the died girl child. Okay, and what are the tax benefits? Obviously guys, and this is also the thing that you can do effortlessly. Obviously अगर गवर्नमेंट को जिस तरीके की बेनिफिट प्रोवाइड करा रही है जहां पे कि गवर्नमेंट ने अकाउंट खुलवाया है और गवर्नमेंट उसमें इंटरेस्ट दे रही है, ऑब्वियसली वो जो प्रोविजन होगा या वो जो भी बेनिफिट होगा वो exempt होगा from the income tax. Okay, so the deposits made under this account are fully exempted under section 80C of the income tax act. Okay, so guys that was about the scheme. I hope आपको ये scheme clear है. There are no doubts. Basically सुकन्या को समृद्ध करने के 2 तरीके हैं, एजुकेशन और मैरिज. और दोनों के लिए क्या चाहिए, पैसा गवर्नमेंट इसमें नहीं दे रही है. गवर्नमेंट इज सेइंग टू ओपन एन अकाउंट इन द नेम ऑफ द गर्ल चाइल्ड जिसमें गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग द गुड रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, इसके लिए जो टेन्योर है वो कितना है, 21 साल का है. और किसी भी पोस्ट ऑफिस या किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में जो कि जिनको अप्रूव किया गया है वहां पे अकाउंट खोला जा सकता है. इसके अलावा व्हाट वी हैव डिस्कस कि इसमें जो मिनिमम डिपॉजिट है दैट इज ₹250, मैक्सिमम इज ₹1,50,000. प्रीमेच्योर विड्रॉल इज अलाउड ओनली आफ्टर द गर्ल चाइल्ड अटेन्स द एज ऑफ 18 years. And that premature withdrawal is limited up to 50% of the total amount. In the case of death, the account will be closed automatically and the balance in the account along with the interest will be given to the guardian. Okay, an income tax benefit under the section 80C, and ministry is very clear, Ministry of Women and Child Development, and also it was launched in the year 2015 along with the Beti Bachao Beti Padhao, in fact as a part of Beti Bachao Beti Padhao. Okay, so this was the scheme guys. Now let's talk about the question that can be asked in your exam. What is the minimum deposit under Sukanya Samriddhi Yojana account? So earlier it was 1,000 but now it has been decreased to how much? ₹250. So option B 250 guys is the correct answer here. Question 2. When was the Sukanya Samriddhi Yojana launched? So it is very easy question. 2015 as a part of Beti Bachao Beti Padhao. So option A 2015 here is the correct answer. Question number 3 is
हाउ मेनी सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट कैन बी ओपन बाय फैमिली? सो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी छोटी सी, दैट द गवर्नमेंट इज प्रोमोटिंग हमारे दो ऑब्वियसली, तो गवर्नमेंट जो है वो 2 चाइल्ड के लिए ही यहाँ पे बेनिफिट प्रोवाइड कराएगी. सो हियर द करेक्ट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन डी 2. सो अ फैमिली कैन ओपन 2 SSY अकाउंट्स. एंड क्वेश्चन नंबर 4, with respect to the Sukanya Samriddhi Yojana, identify the correct statement. Correct statement identify करना है हमें. The deposits made under the account are exempted under income tax act. This is absolutely correct. Premature withdrawal is limited to 50% of the balance that was at the end of the preceding financial year. This is also correct. And maximum validity of account is 21 years. This is also correct. So guys, all are correct should be the correct answer. Option E. Okay.